has successfully conducted several workshops in Pune. So big hand for her. Big Thank hand you. for Jignev, and Thank over you. to you. You have mic here. Yeah, you can that's talk. working. Yeah, that's good. Yeah. Thank you so much. I'm here only. What's your name? Sorry. Vishal. Hi Vishal, you're doing an amazing job. Thank you so much. मैंने कहा था देखा. No, sorry. Okay. Good evening, everyone. So my name is Jignya Thakkar. My name. A lot of people know me as Khushi. I'm really sorry with that. Okay. So my venture, the Chocolate Fantasy, came out of my love for chocolates. I started with chocolate bouquets during my 10th standard vacation. That is how I got into baking. So yeah, that's right back in 2007 when I started my chocolate journey, and it's been almost a good 9+ years now that I have been baking professionally and taking workshops. So today I will be doing one of my signature recipes, that is a rose and a pistachio travel cake. Okay, so before we begin, I would just like to introduce, that's Neha. She is my student and she'll be assisting me here today. And may I introduce you to my husband Pankit. This is my first official workshop after my wedding, and he's assisting me for the first time over here. And we have a cute little assistant over here. Her name is Ida. You would introduce? No. Come here. She's my smallest, cutest What's your name? What's your name? assistant. आयरा, जोर से बोलो. आ रही है आवाज? आयरा, ओके, चलेगा. ओके, इस प्यारी सी बच्ची के लिए भी ताली बजा दीजिए यार. और मैं सुबह से वर्कशॉप देख रहा हूँ, ये पहली वर्कशॉप है जिसमें इतने असिस्टेंट आए हैं. That's great. और मैंने सुना आपकी अभी भी शादी हुई है. Yeah, just got married. Both of you, एक बार इसके लिए तालियां. अच्छा, उस शादी का केक किसने बनाया? आपने बनाया था? No, I do not have time to bake the cake. Sorry. क्या पता, अपनी शादी का केक मैं ही बनाऊंगी. लहंगा आप चूज कर लो, पर केक मैं ही बनाऊंगी. ऐसा तो नहीं किया था ना आपने? नहीं, Not at all. Please, over to you. Yes, so we'll begin with the recipe. Okay, do they have the printout or anything, or on the website? Yeah, so all the recipes are uploaded in the Instagram bio link. If you click on that, you will get all the recipes. Okay, Instagram bio. ये होम बेकर्स का जो इंस्टाग्राम है उसके बायो में लिंक है, वहाँ पे जाएंगे आप तो you'll get all the recipes. Got it? Say yes. Nodding नहीं चलेगा अभी. देखो लास्ट वर्कशॉप है. Show some energy. Okay, over to you. Okay, let me tell you, I am a very talkative person because I've been taking workshops since a very long time. मुझे बातें करना, लोगों से interact करना बहुत पसंद है. And because मुझे नए नए लोगों से इतना मिलना अच्छा लगता है, that's the only reason मैं ज़्यादा workshops लेती हूँ. तो if you're going to be a very silent crowd, मुझे मज़ा नहीं आएगा सिखाने के लिए. So you have to be like, you know, very encouraging, cheering and all. And अंजना ने अभी अभी मुझे बताया कि जो सबसे ज़्यादा and सबसे interesting questions पूछेगा, उसके लिए भी एक surprise hamper है. तो जैसे जैसे मैं रेसिपी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आप आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे नोट डाउन कर लो, एंड फिर देखते हैं किसके पास सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं. एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस लाइक, यू नो, 1/4 टीस्पून क्या होता है एंड ये क्या होता है. नो, लाइक समथिंग लाइक रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग. ओके, सो यस, बिफोर बिगिनिंग, किस किस को पता है कि ट्रैवल केक्स क्या होता है? एनी आइडिया? या मे बी रैंडमली यू कैन टेल मी. The cake which can last for more than 2 to 3 days and which is convenient while traveling. ज़्यादा क्रीम नहीं या चॉकलेट का यूज़ नहीं है. So these kinds are of travel. Right. Anyone else? Without icing. Okay, without icing. Anything else? Dry cakes which can be easily taken और खराब होने का डर नहीं हो, एक थोड़ा लास्ट लॉन्गिंग हो. Right. आई थिंक दैट इज ट्रैवल केक्स, और हम कहीं पे भी भेज सकते हैं. Because ट्रैवल केक्स का नाम ही ट्रैवल केक्स है, तो मतलब कहीं पे भी लेके ट्रैवल कर लो उसको. राइट इजी टू राइट ईट, इजी Right. टू टेक केयर ऑफ, लाइक आराम से रख सकते हैं कहीं पे भी, कुछ डर नहीं है उसको खराब होने का. राइट. अभी अगर हम उसके मे बी दे वांट टू टॉक, यू कैन जस्ट. Or like travel cakes can be transport easy. Like there's no like we don't have a fear like it will get spoiled or something. ओके, So transport ये बहुत ही सेफेस्ट एंड इजीएस्ट आंसर था. ट्रैवल केक्स क्या है, जिसको लेके ट्रैवल कर लो वो ट्रैवल केक्स हो गया. We can try like send it to other cities and दैट इज कम्प्लीटली फाइन. अभी उसके एक स्टेप आगे की बात करते हैं. एनी आइडिया कि उसका टेक्सचर कैसा होता है, उसका क्रम कैसा होता है, हाउ इज द माउथ फील जब आप उसको खाते हो कंपेयर टू योर रेगुलर पेस्ट्री केक्स या समथिंग? समबडी एल्स. या They are sweet and taste.
Okay. They are buttery. Okay. They mostly it's made of preferably like if you want to go for taste, you use butter in it, and if you are looking for the moisture level and all, so we use vegetable oil in it. Okay. Right? Okay. Okay. So basically, it's very soft, melting in mouth kind of a texture. Okay. And a sweet texture. Okay. Okay. And yeah, the crumbs. Okay. Crumbs. Okay. Yeah. Anybody else? Yeah. आप लोग मेरा काम इजी कर रहे हो, मैं एक्सप्लेन करूँ उससे बेटर आप ही मुझे सारे आंसर्स दे दो. उसके टीन्स अलग रहते हैं. Okay. ट्रैवल केक का फीलिंग अंदर से रहता है. Okay. इसमें हम मतलब गनाश वगैरह फिल कर सकते हैं और उसका मतलब शेल्फ लाइफ 4 या 5 दिन होता है. ओके. ओके. और टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है उसका. ओके. और उसमें मिल्क कंटेंट बहुत कम रहता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग अच्छा रहे. Okay, okay, okay. Thank you so much. Now I think I'll start talking. Yeah. So travel cakes सबसे easiest answer. अगर हम उसको लेके travel कर सकते हैं, that's the name. उसको travel cakes बोला गया है, ठीक है? How many of you all are comfortable in English, or should I just be like Hindi English mix थोड़ा सा? My Marathi is very bad. I'm really sorry. Okay, okay. So travel cakes is basically somewhat similar to tea cakes. आपके जो टी टाइम केक्स होते हैं, राइट, उसी का होता है, बस उसको लेके हम ट्रैवल कर सकते हैं. तो ट्रैवल हम कब कर सकते हैं? जब उसके ऊपर आइसिंग वगैरह ज़्यादा ना हो. जिस केक बेक किया उसी को पैक किया एंड उसी को हम कहीं पे लेके चले गए, एंड अगर वो 3-4 दिन रूम टेम्परेचर पे बाहर रह जाता है, सो दैट इज वाई उसको हम ट्रैवल केक्स बुलाते हैं, राइट. अगर हम आपका नॉर्मल केक देखते हैं, जैसे आपके रेगुलर पेस्ट्री केक्स या जो हम नॉर्मल आइसिंग वाले केक्स वगैरह बनाते हैं, तो जनरली उसमें हम बटर लेंगे, शुगर लेंगे, उसको एक साथ क्रीम करेंगे. क्रीमिंग करने के बाद उसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स ऑल्टरनेट तरीके से डालेंगे, एंड दिस इज हाउ यू वुड मेक योर रेगुलर पेस्ट्री केक. फिर उसको आप शुगर सिरप के साथ सोक करोगे, मे बी गनाश या विप्ड क्रीम के साथ उसकी फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग वगैरह करोगे. दैट्स योर रेगुलर केक. टी टाइम ट्रैवल केक्स इज लाइक वेरी इजी रेसिपी. ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ले लो, वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ ले लो, एंड उन दोनों को मिक्स कर लो. ओके, एंड दैट इज योर केक्स रेडी, राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रैवल केक्स में पीपल माइट ईदर प्रिफर यूजिंग बटर या फिर ऑयल एज योर फैट कंटेंट. ओके, आई पर्सनली लाइक यूजिंग ऑयल बिकॉज कई बार कैसे होता है ना, नॉर्मल टेंडेंसी है हम केक बना के ज़्यादा टाइम रखने के लिए उसको फ्रिज में रख देते हैं. फिर फ्रिज से डायरेक्टली हम जब केक लेके उसको कट करते हैं एंड वी ईट इट, सो इट्स लाइक रियली हार्ड बिकॉज बटर हार्डन्स इन द रेफ्रिजरेटर, राइट. तो जब हम क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि यार आपका केक बहुत ही ड्राई था and it was like, you know, there was no moistness at all. So that's the only reason I prefer using oil in all of my recipes. Okay, now this particular cake I would not really call it like a tea time cake, okay, because this recipe has curd, this recipe has oil, and ये वाला जो recipe है उसका जो क्रम है वो बहुत बहुत soft है. It's almost like कि ये recipe को अगर आप थोड़ा सा alter करोगे तो इसको आप आपके regular whipped cream and ganache cakes के साथ भी use कर सकते हो. So this is not like a regular tea cake, but मैंने उसको ऐसा shape दिया है and उसके अंदर मैंने insert वगैरह डाला है, तो मैं उसको एक ट्रैवल केक का रिजेम्बलेंस दे रही हूँ. ओके, सो इफ यू गो बैक एंड सी द रेसिपी, द स्टेप इज टू टेक कर्ड एंड शुगर एंड यू हैव टू लाइक व्हिप इट टुगेदर. ओके, सो कर्ड जो यहाँ पे मैंने लिया है, दिस कर्ड इज प्रोसेस्ड कर्ड. ओके, मैं घर का कर्ड यूज नहीं करूंगी. द रीजन बीइंग, घर का जो कर्ड होता है एवरी टाइम यू सेट उसका कंसिस्टेंसी कई बार या तो थिन होगा या हल्का सा थिक होगा. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर जो चल रहा है, कई बार आपका दही खट्टा हो जाएगा, right? So you don't want that because curd is like your major ingredient in this recipe. If your curd goes wrong, your entire recipe is going to go wrong. Okay, so using processed curd every time makes a lot of sense. Okay, so आप कोई भी curd ले लो, but again वो जो curd होगा, even if you take a processed curd, the fat content is different and उसमें liquids होता है, तो liquids को आप discard कर दो and जो बाकी का आपका solid content है उसको आपको लेना है, ठीक है. So this is my curd over here. And this is my powdered sugar. So I have weighed out all the ingredients all together. Normal whisk, no hand beater, no spatula, nothing, just a normal whisk. Okay. So generally हम normal recipe में क्या करते हैं, बटर लेते हैं, शुगर लेते हैं, और उसको एक साथ हम बीट करते हैं. यहाँ पे I am taking sugar and curd and I am just mixing it. Now I am taking normal पीठी शक्कर, घर का पीसा हुआ शक्कर, not icing sugar, caster sugar, nothing. Regular आपका घर का पीसा हुआ शक्कर. You want me to repeat the? Okay, curd is 270 grams.
powdered sugar that I'll be using is 190 grams. Supposedly powdered sugar नहीं होता है, आप castor sugar भी use कर सकते हो. $270. The recipe is already there on the website. Sorry? I think वो गुलकंद. Can you just pass me 1 second? We have to take 150 grams sugar or 190 because on website it's mentioned 150. Can you just pass me that? ओके आपका जो रेसिपी है मैंने आई हैव गिवन यू द ऑथेंटिक ट्रैवल रेसिपी दैट आई मेक एट होम. तो बेसिकली इफ यू आर जस्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेसिपी फॉर योर रेगुलर केक्स एंड ऑल, देन योर शुगर इज गोइंग टू बी 190 ग्राम्स. आपको जो मैंने रेसिपी दिया है उसको मैंने एक स्टेप एडवांस कर लिया है. मैंने उसमें शुगर को 40 ग्राम से माइनस कर लिया है एंड 40 ग्राम्स में उसमें गुलकंद डाल रही हूँ. केक इज रोज एंड पिस्ताशियो ट्रैवल केक, सो दैट्स द रीजन मैंने उसमें 40 ग्राम शुगर कम करके मैंने उसमें 40 ग्राम्स गुलकंद डाल दिया है. ओके, सो दैट्स अनदर वेरिएशन. सो आपको जो रेसिपी दिया गया है दैट्स अ वेरिएशन. तो यहाँ पे मैं माइनस द गुलकंद बना रही हूँ. सो आई एम नॉट यूजिंग द 40 ग्राम्स ऑफ गुलकंद, आई एम इंस्टेड यूजिंग 40 ग्राम्स ऑफ नॉर्मल शुगर ओनली. So this is my curd and sugar mixed properly. Okay, अभी इसी में I will be using the Wickfield का baking powder and baking soda. Now एवरी बेकर जब से आपने बेकिंग स्टार्ट किया होगा आई गेस आपके घर पे हमेशा वो रेड डब्बा रहता ही है, द बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. तो आई थिंक मुझे विकफील्ड ब्रांड को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हम बाय डिफॉल्ट विकफील्ड का ही यूज़ करते हैं. दे आई थिंक ऑल्सो हैव अ लवली रेंज ऑफ कस्टर्ड पाउडर एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स ऑल्सो. Okay, now your recipe calls for 1 and 1/4 teaspoon of baking powder. Okay, so I'll just show you how you measure the baking powder. उसको अंदर से नॉर्मली लूज करके पूरा हीप लेना है एंड इसको फ्लैट कर देना है. ओके, सो दैट्स 1 and 1/4 teaspoon of the baking powder. Then goes 1/2 teaspoon of baking soda. एंड इसको अभी बहुत स्लोली मिक्स करना है. Now whenever you add baking powder and baking soda to anything liquid, it is going to bubble up, right? अगर हम सोडा को पानी में मिलाते हैं तो वो bubble up होता है, right? Exactly same thing is going to happen right now. So somebody can just come here. That's okay. If you see it now, and I'll call you to see after 3 minutes again, so you can just tell the audience कि इसमें क्या difference आया है बैटर में. ठीक है? So meantime I'll just show you. अब इस बैटर को 3 minutes के लिए हमने साइड में रख दिया है. ठीक है? Now this is the travel cake mold that I will be using for today's demo. Okay? So ये बहुत easily आजकल RF वगैरह काफ़ी स्टोर्स में अवेलेबल हो जाता है. तो इसको मैंने नॉर्मल आपका ऑयल एंड मैदा डाल के डस्ट करके रख दिया है. ठीक है? Now over here I have 140 grams of your regular मैदा. ठीक है, इसी के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड 20 ग्राम्स ऑफ नॉर्मल पिस्ताशियो पाउडर. तो नॉर्मल पिस्ताश को मैंने घर पे मिक्सी में नॉर्मली पीस लिया है एंड दिस इज गोइंग टू ऐड इनटू दिस. मैदा मेरा सीव किया हुआ है. ओके, एंड इसमें पिस्ताशियोस पाउडर डाल के मिक्स करके साइड में रख देना है. इसको यहाँ पानी गर्म करने रखी हूँ, फिर इसे मेल्ट करती हूँ. नहीं और पानी वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो उसके ऊपर ये चॉकलेट मेल्ट कर. अच्छा, डबल बॉयलर रैप क्यों करना? नहीं नॉर्मली ऐसे ही कर दो. Do you have any queries up till now? Any questions, girls? नहीं? No? कोई बात नहीं, आएंगे सवाल आएंगे. I trust you. Yeah, I trust माधुरी. Who's Madhuri by the way? Okay. माधुरी आप लेके वहाँ क्यों बैठे हो? You should be here right अरे in आओ, front खाली सीट है, ऐसे. आ जाओ माधुरी, आ जाओ. माधुरी पहले वहाँ बैठी थी, फिर को जगह नहीं मिली लंच का, तो वहाँ चलेंगी. अभी हम कोई बात नहीं, हम कुर्सियाँ आपके लिए आगे लगवा देंगे. आपने घबराना नहीं है, ठीक है? बस क्वेश्चन पूछते रहना है. आइए बैठिए, ऑल योर्स. अरे मैडम
पर्सनली मैं भी 2 दिन से माधुरी दीक्षित की सीरीज देख रही हूँ. देखो सी, आपने देखो 2 दिन देखी, तीसरे दिन देखो सामने सामने आ गए. साक्षात. Yes, you can just tell the crowd what the difference is if you can feel. Yeah. Right, so यहाँ पे जो बैठे हैं, if you notice, batter में froth आ गया है, right? So this is almost 3-4 minutes done and the batter is completely frothed, okay? अब इसके बाद क्या करना है? इसमें oil डालना है, okay? Oil is 130. Oil अभी regular flavorless oil, okay? तो मैं जो use कर रही हूँ ml में. Three to 4 minutes. एंड इसी में हम डालेंगे द पिस्ताशियो क्रश जो मालास का है. ओके, सो मान लो अगर आपको कोई भी दूसरा, जैसे आई थिंक मालास हैज लॉन्च्ड कैरमल का सिरप या कुछ तो है. सो दिस 20 ग्राम्स जो मैंने यहाँ पे दिया है, इन केस इफ यू आर नॉट यूजिंग 20 ग्राम्स ऑफ पिस्ताशियोज, आप उसकी जगह पे अगर आपको कैरमल फ्लेवर्ड बनाना हो तो आप जो आमंड इसमें फ्लावर में जो हमने पिस्ताशियो पाउडर डाला है उसको ओमिट कर दीजिए, 20 grams of flour बढ़ा दीजिए and you add the 20 grams of the caramel syrup in your batter and you can make a caramel flavored sponge. Okay, उसी तरह से I think Mala's has quite range of syrups वगैरह है. मैं generally जैसे अगर ऐसे अभी होली आ रहा है तो if there is a ठंडाई का syrup तो you can add ठंडाई syrup into that. Okay, then if you want to make like a rose वाला तो आप उसमें rose syrup डाल दो. जैसे हम इस वाले केक में क्या करेंगे, हम जो बैटर है वो पिस्ताशियो क्रश के साथ बनाएंगे एंड जो गनाश है उसको हम रोज सिरप के साथ बनाएंगे. वैसे आई गेस उसका ब्लूबेरी, मैंगो, ऑरेंज वगैरह एक्सेट्रा जो भी आता है, सो यू कैन जस्ट ऐड इट टू योर बैटर एंड यू कैन यूज इट. ओके, एंड सपोजिटली अगर इस वाले केक को आपको एक रेगुलर वेनिला केक बनाना है तो जस्ट ओमिट द 20 ग्राम्स ऑफ योर एनी क्रश एंड जस्ट आप उसकी जगह पे 10 ग्राम्स ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दो, तो ये आपका रेगुलर वेनिला स्पॉन्ज बन जाएगा. ओके, सो इसी में मैंने डाला है 20 ऑफ योर पिस्ताशियो. सो मैंने पिस्ताशियो का क्रश भी डाला है, साथ में मैंने क्रश्ड पिस्ताशियोज यानी पिस्ताशियोज का पाउडर भी इसमें डाला है टू गिव इट लाइक अ प्रॉपर पिस्ताशियो का फ्लेवर. अब इस चीज़ को बहुत हल्के हाथ से आपको विप करना है. ना इफ यू वांट टू बी मोर ड्रामेटिक आप इसमें ग्रीन कलर भी डाल सकते हो, बट आई एम नॉट लाइक अ पर्सन हु विल ऐड अ लॉट ऑफ कलर्स टू माई रेसिपीज. आई वुड लाइक टू कीप इट लाइक रियली प्लेन एंड सिंपल. So at this particular point मेरा oil and मेरा curd and sugar and everything is being mixed homogeneously. ये एक proper mixture बन गया है. अभी इसी में हम डालेंगे flour. Initially मैं आधा डालूंगी. I will mix it up. I'll add in the remaining. Now after this point, just a little cut and fold ताकि अगर आपके साइड्स पे या नीचे से अगर कुछ फ्लावर होगा तो वो एकदम easily mix हो जाएगा. Okay, and this is your batter that is ready. Okay, now maybe 2-3 people voluntarily, if they want to just taste the batter, they can come up. We have one over here. Do we have any other spoons somewhere? आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास समथिंग जो ज़्यादा फ्लेवरफुल है वो मिल रहा है तो आपको एसेंस में क्यों जाना है, बिकॉज एसेंस इज समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल फ्लेवर, राइट. तो एंड ऑलमोस्ट अगेन उसमें थोड़ा वाटर बेस्ड होता है, अल्कोहल बेस्ड होता है, तो वो थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं. तो अगर आपको चीज़ें जितनी नेचुरली मिलती है आप उतना नेचुरल यूज़ कर सकते हो. तो फिर एसेंस, एंड एक बार कैसे होता है ना, नटी एसेंस का ना हल्का सा पीछे से कड़वा ये आता है. सो आई वुड प्रिफर यूजिंग थिंग्स विच आर लाइक नेचुरली अवेलेबल, मतलब ऐसे.
सॉरी, थोड़ा होता है बट जैसे क्रश का थोड़ा ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। जैसे अगर मुझे पान फ्लेवर्ड बनाना होता है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं मार्केट से जाऊँ, मीठा पान लेके आऊँ, घर पे उसको क्रश करूँ एंड यूज़ कर दूँ। बट अगर नहीं होता है तो फिर मैं पान सिरप यूज़ कर लूँगी, राइट। बट आई वोंट गो फॉर अ पान फ्लेवर्ड एसेंस बिकॉज ये जितना एब्सोल्युटली तो जनरली हम जब टिन में बैटर डालते हैं तो हम 1/2 to 3/4 जितना उसको फिल करते हैं, राइट। सो इफ यू जस्ट सर्कुलेट दिस, इतना बैटर आपके टिन में जाएगा। बस निकाल दो, बस रहने दो। Sorry? Yeah, probably also because this crush is like really nice and flavorful. मतलब जब से आई थिंक बचपन से हम 2 ही नाम सुनते आते हैं, वन इज माला एंड दी अदर वन, या सो ये जैसे बोलते हैं ना बचपन की यादों वाला ब्रांड है। ये तो मतलब जब से हम बेकिंग स्टार्ट करोगे आपके घर पे वो छोटे छोटे लाल डब्बे मिलेंगे। अभी तो भी देव शिफ्टेड टू द ब्लू डब्बा फॉर द सोडा टू आइडेंटिफाई कि ये सोडा है। What is your story about it? कुछ तो बताओ इसके बारे में। क्या? इसकी आपकी क्या यादें जुड़ी हैं इस डब्बे के साथ? कुछ तो किस्सा होगा ना कि अरे यार ये डब्बे में पता नहीं क्या कुछ तो मैजिक होगा। मैजिक का तो पता नहीं बट मैंने ब्लंडर्स बहुत किए हैं जब मैं नई थी। अभी इमेजिन करो कि 2007 यानी 10th स्टैंडर्ड के वेकेशन में मैंने बेकिंग स्टार्ट किया। ओके मैंने बेकिंग कैसे सीखा था, 300 रुपीज़ का डेमो वर्कशॉप, वहाँ पे वो आंटी सिखा रहे हैं, मैं रेसिपी बुकलेट लेके सबसे पीछे खड़ी हूँ बिकॉज मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट था सीखने के लिए, बट मुझे धक्के मार के सिखाया गया था। हाँ, मेरी बुआ ने भेजा था मुझे, तो ऐसे धक्के मार के भिजवाया था कि बेटा गुजराती फैमिली है, लड़की से पढ़ाई करेगी तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ये भी आना चाहिए। तो किचन में घुसाने का उन्होंने ऐसा उल्टा तरीका अपनाया था मेरे लिए। तो अभी उस टाइम पे तो जो वो सिखाते थे घर पे आके पढ़ाया वो केक जेल एंड आई थिंक केक जेल काफ़ी लोगों को पता होगा। अगर आप 10 साल पहले बेकिंग सीखे हुए हो तो वो केक जेल और केक एनहांसर कुछ तो आता था, वैक्स जैसे लगता था, वो देख के मेरे घर पे लोग केक नहीं खाते थे बट जैसे आई थिंक, और पहले बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों के लाल डब्बे होते थे, ब्लू कलर तो अभी आया है। तो बस वो बनाते गए, तो एक बार गलती से मैंने पाउडर के जगह पे डबल सोडा डाल दिया था एंड जो मेरा बैटर था वो पूरा ऐसे फूक के पता नहीं वो क्या ही हो गया था। सो दैट इज आई रिमेम्बर। उसके बाद से मतलब अगर इस पे लिखा भी होगा ना बेकिंग पाउडर, तो भी ऐसे ढक्कन पे इधर उधर जितना मुझे विजिबल होता था ना, मैं हर जगह पे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लिख के रख देती थी। सो दैट इज माई स्टोरी विद द विकफील्ड का थिंग। नहीं, आपके पास भी कोई स्टोरी का शेयर कर सकते हैं, ऐसे फनी किस्से देखो जरूर होंगे बेकर्स के पास, हर फील्ड में हर 90% सबका यही किस्सा होगा कि या तो पाउडर की जगह पे सोडा डाल दिया होगा या सोडा की जगह पे पाउडर डाल दिया इसने होगा। सुबह वाले सेशन में बताया था कि नानी ने उसके पकौड़े बना दिए थे। क्या डाल दिया था? पकौड़ों में डाल दिया था सोडा, बेकिंग। हाँ पकौड़ा। अच्छा। अरे वाह, आई वाज लाइक अरे वाह, अच्छा, सोडे की जगह सोडे, हाँ कुछ समथिंग रिलेटेड। एंड मालाज तो हम बचपन से उसी के सिरप्स वगैरह यूज करके बड़े हुए हैं, तो वो परफेक्ट वो बचपन की याद वाला किस्सा है विथ मालाज। ओके, सो ये जो मेरा टिन है, ओके, सो दिस बैटर जनरली 180 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए ये बेक किया जाता है। या tin size और batter. The batter ingredient and the weight is similar to the tin size or the different? इस वाले में आपके 2 ऐसे टिन्स बेक होंगे एंड 4 नॉर्मल साइज कपकेक्स आपके निकलेंगे। ओके, इफ यू हैड टू बेक इन और उसके लिए साइज क्या रहेगी? सिर्फ एक बेक करना है? just one normal, तो you'll have to bake it in a 8 inch round लीजिए। tin. ओके, 8 इंच का राउंड ले लीजिए या स्क्वायर ले लीजिए, तो एक एंटायर बैटर आपका एज इट इज बेक हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा है इट गोज इन 1 8 इंचेस या फिर इसके 2 6 इंचेस निकलेंगे। ओके, 1 सेकेंड, नो, समवेयर अराउंड 600 के आसपास बनेगा आपका।
उसके ऊपर जाएगा हल्का सा आपका बैटर। ऑलमोस्ट जब मैं ये पूरा इंग्रेडिएंट्स में 6 इंचेस में डालती हूँ तो मेरा एक टिन में 380 ग्राम्स बैटर जाता है। तो 380 सो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 700 ग्राम्स के ऊपर मेरा बैटर जाता है। तो ऑलमोस्ट 650 680 के आसपास आपका रेडी केक आएगा। ओके सो अगर आप मतलब बेसिकली अगर आप इस केक रेसिपी को 6 इंचेस में डिवाइड करते हो तो एक स्पॉन्ज आपका ½ kg केक के लिए परफेक्ट होगा। इफ यू वांट टू डू आइसिंग वाइसिंग एंड ऑल, मतलब ऐसे। ओके या Hi, Jigna. या जो आपने टीन में अभी फिल किया है उसमें थोड़ा सा ऊपर और डालना चाहिए या इतना लेवल इतना इनफ है बिकॉज ये केक काफी फूलता है। Okay. ओके इट राइजेस बिकॉज इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों है राइट। तो वो yes, राइज होगा। इससे ज्यादा अगर आपका हो गया तो फिर तो वो टिन overflow. के बाहर आ जाएगा। Okay. ओके बट इन केस अगर आपको थोड़ा और टॉलर वर्जन चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने जैसे इसको सिर्फ नॉर्मल ऑयल एंड फ्लावर कर दिया था। Yes, yes. तो इसके साइड्स पे आप पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर रख दो तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा एंड देन इट वोंट ओवरफ्लो बट इंस्टेड वो राइज होगा। Okay, ओके thank you. बट जितना मैंने रेगुलरली बेक किया है दिस इज वेयर आई स्टॉप एंड इस रेसिपी में से 2 ऐसे टिन्स एंड 4 कपकेक्स इज व्हाट आई यूजुअली गेट एवरी टाइम। ये टीन का साइज दिस टिन का साइज ओके वेरी ट्रिकी, आई एम रियली बैड विद साइजेस एंड ऑल दैट बिकॉज मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं जस्ट कुछ फैंसी दिखाना ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मुझे कहीं पे भी गई कुछ भी अच्छा लगा लेके आती है। बट इफ एनीबडी वांट्स यू कैन जस्ट कम एंड मेजर इट लेटर। ये एक्चुअली 4-5 साल पहले मैंने एक फैब्रिकेटर के पास से बनवाया था। तो सॉरी आई थिंक इससे बड़ा साइज अभी अवेलेबल है, इतना छोटा इज नॉट अवेलेबल। ओके सो या ट्रैवल केक स्टोर कैसे करते हैं? सॉरी स्टोर कैसे करते हैं? स्टोर कैसे करते हैं, सपोजिटली जैसे ये मेरा बेक किया हुआ केक मैं जो लेके आई हूँ तो इसी को मैं क्लिंग रैप करके मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ बिकॉज मैं बाहर नहीं रखती हूँ बिकॉज बाहर तो ये इजीली रह जाएगा 3-4 दिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट कई बार ऐसे होता है ना कि हम कहीं ऐसी जगह छोड़ जाता है जहाँ सनलाइट वगैरह ज़्यादा होता है एंड ऑल दैट। जनरली इसको कूल डार्क प्लेस पे स्टोर करो बट मैं जो होता है मैं सारे के सारे केक्स अपने फ्रिज में ही डाल देती हूँ। ओके सो क्लिंग रैप करके आई पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर अबाउट 4 to 5 days, मतलब 6 days तो मैं आराम से मेरे स्पॉन्जेस वगैरह चला लेती हूँ। थैंक यू। Anybody else? बेकिंग टेम्परेचर मेरा जो मॉर्फी है उसमें मैं 180 पे बेक करती हूँ बट अगेन एवरी टेम्परेचर इज एवरी ओवन इज डिफरेंट। तो आपको आपके OTG के साथ एक थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर। बट जनरली 170-180 के बीच में फॉर 20 to 25 minutes एंड दिस केक इज डन। ओके एनी क्वेरीज? Any queries? More questions? सॉरी कैसे अभी वो हम बताएंगे, दैट ऑल आई डू इन फ्रंट ऑफ यू। सो यहाँ पे वी हैव अ लिटिल कंस्ट्रेंट, वी डू नॉट हैव द बेकिंग थिंग, सो इसके लिए मैंने बैटर बना के यहाँ पे रख दिया है। नाउ दिस इज द रेडी केक जो मैं घर से बेक करके लेके आई हूँ। ठीक है, सो यू कैन जस्ट पास इट एंड आप इसका टेक्सचर एंड ऑल फील कर सकते हो। सो 20 to 25 मिनट्स के बाद जब आपका केक बेक हो जाता है तो उसको टिन के अंदर ही अराउंड 10-15 मिनट्स ठंडा होने दीजिए। उसके बाद ठंडा होने के बाद आप क्या करोगे, वेरी स्लोली यू विल जस्ट पुल आउट दिस रॉड। ओके एंड एक बार आपका रॉड पुल आउट हो गया उसके बाद भी आप उस केक टिन को ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए रख दोगे। देन जस्ट टेक अ नाइफ, चारों साइड से उसको लूज कर दो एंड इमीडिएटली उसको केक बोर्ड के ऊपर सिर्फ उल्टा करके रख दो। सो केक टिन को सिर्फ उल्टा करके रख देना एंड उसके 5 मिनट्स के बाद आप उसको लिफ्ट कर लो एंड देन यू कैन जस्ट क्लिंग रैप इट एंड पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर। सो ये आपका टेक्सचर होगा केक का। ओके मीनवाइल जब तक वो लोग केक को फील कर रहे हैं अच्छे से, वील जस्ट मेक द रोज गनाश। सो गनाश बनाने के लिए okay, one quick question, what is chocolate ganache? The person who gives me the very right answer gets a surprise hamper. I think उसको easy कर देते हैं। No, you've answered a lot of questions. Maybe somebody else. No, Madhuri for sure. So basically, chocolate compound mixed with cream, which makes up the ganache. It depends upon which chocolate you Okay. add on. Okay. I want something very specific. कंपाउंड भूल जाइए, कुआचर भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। बट व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू डूइंग अ गनाश? क्या बन रहा है? व्हाट इज लाइक यू नो अ लिटिल इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट अ गनाश। चॉकलेट का क्रीमी टेक्सचर बनेगा, जो बाद में चॉकलेट का क्रीमी टेक्सचर बनेगा
जो केक के पर जाने के बाद थोड़ी देर में सेट हो जाएगा. Okay, somebody else? I see Neha smiling a lot. It emulsifies the fat, Okay, yeah, between the chocolate and the cream. right. And that gives you the yeah. ganache. Okay, okay. Somebody else? May I know your name, please? Reena. Reena. Okay, Anybody else? okay. Somebody else? No, not at all, not allowed. Please switch off your internets, put your phone on silent. Anybody else? हाँ बोलो. There's somebody here and maybe Yeah. later Madhuri can answer. She's माधुरी super तो सबसे excited end to में. answer. Yes. सो गनाश इज़ बेसिकली फैट क्रीम और चॉकलेट दोनों को मिक्स करके कंसिस्टेंसी आती है जो फ्रॉस्टिंग के लिए या फिर फीलिंग के लिए यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो गिव्स अ गुड फिनिश या फिर जो भी शेप्स या रोजेट्स बनाने हैं इट्स इम्प्लीफाइज द टेक्सचर और वी कैन डू द लॉट्स ऑफ फ्रॉस्टिंग विद गनाश. Okay, fair enough. Yes, we can end it here. किस रेशियो से हम मिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का गनाश चाहिए है. ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो क्रीम का प्रोपोर्शन ज़्यादा करना है. थिक चाहिए है तो फिर चॉकलेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा करना है. एंड टू और एक अंदर जैसे अगर हम फिलिंग वाले केक्स बना रहे हैं तो उसके अंदर एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए जो एमल्सिफाइंग प्रोसेस होता है कि चॉकलेट एंड क्रीम का, दैट इज़ अ गनाश. Okay. Yes, Madhuri. गनाश का मतलब रेशियो ऐसा रहता है 2 और 2, नहीं तो 2:1, नहीं तो 2:2 ऐसा. तो ड्रिपिंग के लिए अलग गनाश बनता है, डिज़ाइनिंग के लिए अलग बनता है, Okay. और फीलिंग के लिए अलग बनता है. और उससे हम केक को कवर करेंगे तो अच्छा टेक्सचर आता है केक को और टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है. Taste no doubt बढ़िया होता है. Okay. So what? Pure? Love. Hey, Okay. पहले क्यों नहीं बताया ये सब? It's heaven. इस लव समझा? हाँ मुझे अभी पता, पहले बता देते आप मुझे. चलो फिर ठीक. Okay. So what exactly is ganache? Ganache में दो चीजें डलती है. One is chocolate and one is liquid. Okay. So liquids में क्या होता है? It can either be your cream, your milk, your fruit purees, okay, or water. चार चीजें, anything in liquid and your chocolate is constant. Okay. So basically होता क्या है? The fat from your chocolate, okay, and the water content from your cream, when you emulsify it together, okay, so that is when your ganache happens. Okay. तो जब भी हम क्रीम में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, राइट. जब हम वाटर को डायरेक्टली चॉकलेट पे डालते हैं चॉकलेट सीज हो जाता है, राइट. बट अगर हम एक प्रोसेस से, एक तरीके से उन दोनों को मिक्स करते हैं, सो यू इमल्सिफाई दैट थिंग एंड दैट इज व्हेन योर गनाश हैपेंस. ओके. सो जनरली चॉकलेट को या तो आप मेल्ट कर लो एंड उसमें आप कोल्ड क्रीम डाल लो, उसको मिक्स कर लो, दैट इज हाउ यू वुड मेक योर गनाश. दूसरा इज यू वुड हीट अप योर क्रीम, यू वुड मेल्ट योर चॉकलेट, नॉट मेल्ट, सेमी मेल्ट योर चॉकलेट, दोनों को मिक्स कर लो, दैट इज योर गनाश. तीसरा मेथड, क्रीम एंड चॉकलेट दोनों को एक साथ एक बोल में डाल लो, गरम कर लो एंड मिक्स कर लो, दैट इज अगेन योर गनाश. ओके. या फिर क्रीम एकदम हॉट गरम लाइक पाइपिंग हॉट ले लो, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर चॉकलेट डाल दो, 5 मिनट ढक के रख दो एंड फिर उसको मिक्स कर लो. ठीक है. कोई तरीका सही या गलत के तरह लेबल्ड नहीं किया जा सकता. अभी जैसे मैं अगर मेरे घर पे गनाश बना रही हूँ, व्हाट आई वुड फॉलो इज कि मैं चॉकलेट को हल्का सा सेमी मेल्ट कर लूँ, ओके, एंड क्रीम को प्रॉपर गरम कर लूँ एंड फिर उस गरम क्रीम में मैं सेमी मेल्टेड चॉकलेट डालूंगी, उसको मिक्स करूंगी एंड दैट इज माई गनाश. बट नाउ एट दिस पर्टिकुलर यहाँ पे जहाँ मैं काम कर रही हूँ, आई डो नॉट हैव एक्सेस टू माइक्रोवेव, राइट. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने चॉकलेट को कंप्लीटली डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया, उसमें मैं कोल्ड क्रीम डाल लूंगी एंड मैं उसको मिक्स कर लूंगी एंड दैट इज माई गनाश. ओके. सो देयर इज नो प्रोसेस विच इज राइट और रॉन्ग. द प्रोसेस विच इज feasible to your working condition is right for you. Okay, तो ये अलग अलग तरीकों से आप गनाश उसको बना सकते हो, right. Now a basic white chocolate ganache, yes. When we use a warm cream. Warm cream जब हम करते हैं and we add chocolate to that, your ganache is going to be really thin.
ओके एंड जब मेल्टेड चॉकलेट में हम कोल्ड क्रीम डालते हैं द गनाश इज गोइंग टू सेट फास्टर ओके बिकॉज क्रीम अभी इज गोइंग टू बी लिटिल थिक जब उसको गर्म करते हैं वो तो लूज आउट हो जाता है वो हल्का सा थिन हो जाता है राइट बट दैट गनाश सो सपोजली आई हैव अ गनाश जहाँ पे मैंने गरम क्रीम लिया है उसमें चॉकलेट डाला है एंड आई हैव अ गनाश जहाँ पे चॉकलेट मेल्टेड था और उसमें मैंने ठंडा क्रीम डाला है तो जो ठंडे क्रीम वाला गनाश है दैट इज गोइंग टू सेट अप वेरी इजीली वो जल्दी सेट हो जाएगा बिकॉज उसमें एक का टेम्परेचर गर्म था एक का टेम्परेचर ठंडा था जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर गर्म होगा तो डेफिनेटली उसको ठंडे होते होते बहुत टाइम लगेगा तो अगर ये गनाश मेरा 8 घंटों में सेट हो रहा है तो ये मेरा शायद 2-3 घंटों में सेट हो जाएगा रूम टेम्परेचर एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू यूज इन बेकिंग इज ऑलवेज रूम टेम्परेचर तो आपका जो क्रीम होगा वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए अगेन ये वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आई एम गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसेस अदरवाइज इफ यू टेल मी द रिकमेंडेड प्रोसेस इज ऑलवेज कि आप क्रीम को गर्म करो एंड उसमें चॉकलेट डालो रीजन बीइंग व्हाई फूड सेफ्टी फूड हाइजीनिक का अगर आप देखोगे देर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जिसको एक टेम्परेचर तक एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म पड़ना पड़ता है तब जाके उसमें फंगल ग्रोथ वगैरह नहीं होती है राइट तो क्रीम को अराउंड 40 डिग्रीज तक आपको गर्म करोगे एंड फिर उसके बाद जब आप उसमें चॉकलेट डालोगे एंड यू स्टोर दैट गनाश उसमें फंगल ग्रोथ नहीं होता है जब आप कोई भी ठंडी चीज में फटाफट कुछ भी डाल के कर लेते हो उसका शेल्फ लाइफ भी हल्का सा कम हो जाता है राइट तो जैसे अगर आप फूड सेफ्टी वगैरह के कभी जाके पढ़ोगे ना तो एक लेवल तक उसको गर्म करना होता है फिर एक लेवल तक उसको ठंडा करके फिर उसको स्टोर करना होता है आप कभी भी कोई भी गर्म चीज को भी डायरेक्टली फ्रिज में नहीं डाल सकते हो यू हैव टू लेट इट कम डाउन टू अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन पुट इन अगर आपको मैं एक गर्मी की जगह से उठा के आई पुट इट इनटू लाइक यू नो ऐसे कश्मीर में डाल दूं तो योर बॉडी इज गोइंग टू गेट अ टेम्परेचर शॉक so same thing happens with all the ingredients also so you slowly increase the temperature and you slowly reduce down the temperature understood okay One more question. yeah may I know your name please Sayami. Sayami okay So while making ganache, is it necessary to use fresh cream or whipping cream? fresh cream always I use fresh cream always but अगर आपको fresh cream में भी this is like a low fat 25% I think Riches या Amul का एक 30% fat cream भी आता है not the whipping cream cream is supposed to be for whipping purpose only your regular dairy cream is supposed to be used for your ganaches okay Yeah. सो यहाँ पे आई एम डूइंग हाफ द क्वांटिटी आई गेस आपकी रेसिपी में मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट दिया है सॉरी 100 ग्राम्स क्रीम है एंड 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट है यहाँ पे आई एम मेकिंग हाफ द रेसिपी ना आपके रेसिपी में एक और चीज़ दी गई है ग्लूकोज इफ यू हैव इट द रेसिपी विथ यू सो लिक्विड ग्लूकोज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ शुगर ओके सो जब आप लिक्विड ग्लूकोज को क्रीम में डालते हो एंड आप उसको मेल्ट करते हो सो होता क्या है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव शुगर इन योर रेसिपी शुगर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द वाटर सो आपका वाटर एक्टिविटी कम हो जाता है तो आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन योर रेसिपी द चांसेस ऑफ फंगल ग्रोथ इज मोर ओके सो द चांसेस ऑफ योर गनाश गेटिंग खराब लाइक यू नो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं बट व्हेन यू ऐड लिक्विड ग्लूकोज टू योर रेसिपी द शेल्फ लाइफ इंक्रीजेस अनदर थिंग ग्लूकोज एड्स इलास्टिसिटी टू योर गनाश ओके सो आपका जो पाइपिंग इफ यू पाइपिंग रोजेट्स और एनीथिंग इफ यू वांट इट लाइक यू नो अ वेरी नाइस कंसिस्टेंसी तो उसका एक कंसिस्टेंसी एनहांस करने के लिए उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी के लिए उसमें हम लिक्विड ग्लूकोज डालते हैं ठीक है तो लिक्विड ग्लूकोज एड्स टू द इलास्टिसिटी एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ योर गनाश ओके सो अगर आपका नॉर्मल गनाश में भी अगर आप 10 डेज रखते हो तो विद द लिक्विड ग्लूकोज इट विल स्टे 4-5 डेज मोर ओके it's already given in your recipe all the proportions are already mentioned in your recipe but now because I do not have anything to melt over here so that's the reason I'm avoiding glucose so glucose in your recipe is completely optional आपको चाहिए आप यूज करो अगर आपको पता है कि अभी मैंने गनाश बनाया है 2 दिन में खत्म होने वाला है omit the glucose not absolutely needed okay so generally अगर आप white chocolate ganache बनाओगे when you just heat up your chocolate and you add and heat up your cream and उसमें जब आप chocolate डालते हो
सो वो एक बहुत ही थिन गनाश बनता है, राइट? अभी बिकॉज वीव टेकन द चॉकलेट एंड वीव एडेड कोल्ड क्रीम, इफ यू सी द कंसिस्टेंसी, इसको मैं अभी तुरंत पाइपिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, एक 5-10 मिनट फ्रिज में रख के. सो दिस इज़ व्हाट, ठंडा क्रीम डालते हो तो वो सेट जल्दी हो जाता है बेसिकली. 1:3. वाइट चॉकलेट इज ऑलवेज 1:3. नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे. अगर आपको थ्रू आउट पिस्ताशियो का केक बनाना हो तो गनाश भी पिस्ता को कर लो, तो रोज की जगह पे यू कैन ऐड इन द पिस्ताशियो क्रश. चॉकलेट, ओके, या 1 सेकेंड. So we are using 2M chocolate. 2M का white chocolate हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास में, ओके. एंड 15. 1.5. So this already has a beautiful pink color, but अगर आपको इसको थोड़ा और enhance करना हो तो इसमें you can just add in 1 drop of red food color. So any gel color is okay. Sorry? There are a lot of brands available, so yes, 30. Now again, syrup का quantity is something which you will have to like taste and see. किसी को थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा semi sweet अच्छा लगता है. So this is something which you can do as per your taste buds. So you see, that's the texture of my ganache. Now we'll start assembling our travel cake. हाँ, उसमें डाल दो. नहीं, हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो सेट रहेगी, राइट? इसी को अगर मैं 2-3 घंटा छोड़ दूँ बाहर तो ये अच्छा खासा सेट हो जाएगा. अगर मैं क्रश या कुछ डालती हूँ तो वो ऐसे ही ऊज आउट हो जाएगा, तो फिर वो मतलब नहीं है डाल के. You can just pass it across अगर किसी को टेस्ट करना हो. थोड़ा और पतला, बेसिकली ब्रश से मुझे उसको ये करते स्प्रेड करते आना चाहिए. आई गेस फर्स्ट बेंच पे बैठने के बहुत सारे फायदे होते हैं. So, ये जो गनाश हमने अभी बनाया है उसी को पाइपिंग बैग में डालना है एंड दोनों साइड से उसके अंदर पाइप करना है. सो बेसिकली होगा क्या, अब जब इसको फाइनली हम डेकोरेट करेंगे एंड व्हेन यू कट इट तो ये आपका केक होगा एंड ये अंदर आपका रोज का गनाश आ जाएगा. क्या बोल रहे हो? This one sets immediately. ये बाहर भी जल्दी सेट हो जाएगा बिकॉज चॉकलेट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. एंड चॉकलेट अगर आप प्योर चॉकलेट यूज़ करते हो तो प्योर चॉकलेट में एज इट इज़ फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, कोको बटर, सो वो जल्दी सेट हो जाता है.
पैकिंग के लिए जैसे देखो अभी मैंने इसको केक बोर्ड पे असेंबल किया है, सो इसी तरह से आप एक केक बोर्ड पे ले लो एंड नॉर्मली बॉक्स में वगैरह डाल के आप उसको कर सकते हो. ओके अगर आपके केक में शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा होगा ना, तो व्हेन इट गोज इन द रेफ्रिजरेटर आपका जो टॉप है वो स्टिकी हो जाएगा. सो मे बी यू कैन रिड्यूस द शुगर क्वांटिटी बाय 10-15 ग्राम्स एंड सी क्या होता है. तो वैसे आप उसको कर सकते हो. या दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, आप इसके जो टॉप है, टॉप के ऊपर एक हल्का सा थिन लेयर ऑफ फॉइल डाल दो एंड फिर उसको क्लिंग रैप कर दो. तो मे बी दैट विल ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके आई हैड अ ब्रश ना एंड एक इसमें पिस्ताज. आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो रोज गनाश है उसी को आप हल्का सा मेल्ट कर सकते हो एंड वो एकदम ही थिन हो जाएगा एंड यू कैन जस्ट पोर इट ऑन टॉप. ओके आई डोंट वांट इट टू बी टू मच ऑफ रोज फ्लेवर. तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपने मेरा फोटो देखा होगा जो हम सीखने वाले हैं, सो इट हैज अ लॉट ऑफ पिस्ताशियोज. ओके तो मैंने क्या किया है, दिस इज अ मिक्स ऑफ न्यूट्रल जेल एंड वाटर. न्यूट्रल जेल जो आप नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह फ्रेश फ्रूट केक्स के ऊपर डालते हो, तो इस तरह से ये किया हुआ है. आई थिंक इसमें थोड़ा और पानी डाल के बस. सो दिस इज बेसिकली लाइक अ ग्लू. तो मैं इस केक को पूरा तरह से इससे ब्रश कर दूंगी एंड देन आई विल जस्ट टेक द पिस्ताशियोज ऑन टॉप. ओके So is there anyone who would like and come and help me out? Not you, sorry. Somebody from behind. Yeah, maybe white, yeah, you and you, both of you all can come. So what you have to do is just take the brush, apply it, and then last में you just have to take it and you need to stick the pistas. Okay, go ahead. Come. May I know your name, please? Komal. And yours? Sorry? Komal and Surbi. Surbi. अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना. Yes, सारे चारों. क्यों अच्छी बात है ना. वो कह रहे हैं कि विशाल को सबके नाम याद हो गया. मेरा नाम किसी को याद नहीं होगा, मुझे नाम याद हो जाता है ना. अरे क्या, हाँ वही, अरे वही विशाल. हाउ रूड. ये वो आज थोड़ी देर पहले हाँ क्या बोला आपने. There's a hashtag how rude. How cute, Cute also. Thank you so much. ये कोने से बड़ा प्यार आ रहा है. सबको चाय चाहिए ना, I know that. ये मुझे मस्का लगाया जा रहा है. मुझसे चाय मांगी है इन्होंने और ये सब मेरे साथ ग्रुप में चाय डेट पे जाना चाहते हैं. बहुत बड़ी, मैं सबको लेके जाऊंगा. आपने घबराना नहीं है, ठीक है. आप दिल खोल के केक खाइए. हम सबको चाय डेट पे लेके जाएंगे. सुरभि और कोमल आराम से, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है. और क्या आप बात करो. सुरभि को मेरा ध्यान है, बाकी किसी को नहीं लगता है. Okay, after this I need 2 more. हाँ, अगले 2 भी रेडी रहना, ठीक है. अच्छा, मुझे लगा था कि मुझे बोलने वाली है. मैं तो थैंक यू सो मच. मैं बच गया. मैं चाहता हूँ यार आज कोई भी आ जाओ यार, मैं सारे टैलेंटेड हैं. हाँ देखो, एक तो आगे मैडम आ जाओ. ये वाली मैडम बहुत बढ़िया. देखो ये अच्छा होता है, खुद ही उठ गए हैं, सीखने के लिए तैयार हैं. वेरी गुड. ओके, अगर आप इस तरह से लगाते जाओगे ना तो मे बी पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी आपका होगा नहीं. सो जस्ट टेक इट एंड
अप्लाई इट, एंड जो एक्सेस होता है उसको आप बाद में निकाल के रख सकते हो. हो गया वैसे कंप्लीट. Yeah. You applied this neutral gel on the cake and then we pasted this. Can we do this same process on the whipped cream? यू कैन डू दैट. आप whipped क्रीम ले सकते हो, या फिर आप ये जो रोज गनाश है उसी का बहुत थिन लेयर लगा के भी आप उस पर पिस्ताश वगैरह स्टिक कर सकते हो. बट देन इट विल बी टू मच ऑफ द रोज फ्लेवर. तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए मैं न्यूट्रल जेल यूज़ कर रही हूँ. नहीं, बैटर के अंदर. अच्छा, पूरा हो जाने दो फिर फोटो ले लो. मेरा ले रहे हो या केक का ले रहे हो? थैंक यू सो मच सुरभि एंड कोमल. Thank you, Komal and Surbi. Big hand for these beautiful girls. Okay, who's coming next? We already have two Yes, pretty yes, yes. ladies over here. Come. पहले तो नाम बताना पड़ेगा आपको. What's your name? आरती जी एंड गुरप्रीत जी. अरे पंजाबी. ओ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. आरती जी एंड गुरप्रीत जी के लिए जोर से तालियां तो बनती हैं. और योर्स, come. स्टेज आपका है, आप धूम मचा दीजिए अभी. Just one second. तो आप अब करोगे सबसे डिफिकल्ट वाला काम, उस पे आइसिंग करना. तो जब भी हम आइसिंग करते हैं यू नीड अ गनाश दैट इज लिटिल सेट. तो ये वाला गनाश मैंने सुबह बनाया था. अब आपको करना क्या है, पहले तो आप इसके ऊपर ट्रायल कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर करोगे. ठीक है, तो नॉर्मल पकड़ना है एंड जस्ट गो राउंड इन राउंड इन राउंड इन राउंड. साइड में करना है, इसके ऊपर पाइप करना है. यस, उसके बीच में पाइप करना है. तो आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए एंड फिर आप उसको उसके ऊपर कर सकते हो. नाइस. मे बी यू कैन. हाँ, बिकॉज हमें स्टिफनेस चाहिए ताकि वो आइसिंग लाइक डेकोरेशन दिखे कि हमने क्या पाइप किया है उसके लिए. whipped cream soft होता है, ganache is a little hard. I must say they are piping really nice. अरे क्या बात है. That's बस. okay, that happens. अरे कोई बात नहीं, सो के. आई थिंक बिकॉज बहुत प्रेशर लग रहा है उसमें. सब आप दोनों में से केक के ऊपर कौन पाइप करने वाला है? सो आपको करना क्या है, यहाँ से शुरू करना है एंड सेंटर में पूरा आपको ये पाइप कर देना है. ठीक है,
डोंट वरी, अगर अच्छा भी नहीं हुआ तो हमें ही खाना है और हम ही है, कोई और देख नहीं रहा है. नहीं नहीं, मैं सब देख रहा हूँ. सॉरी, जस्ट किडिंग. मुझे वो आ गया, वो बाहर आ गया. The trick is to hold the piping back properly. Okay, जब आप पाइप करते हो, so the ideal is कि आप इसको इस तरह से करो एंड आप इसको completely ट्विस्ट कर लो. जब ये टाइट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिलिंग आएगा. अगर आप फिंगर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपका जो नोजल है वो पाइपिंग बैग से निकल जाएगा एंड आपका जो पाइपिंग है वो सही से नहीं होगा. ओके, एक्सपीरियंस, ये होता है एक्सपीरियंस. गुड जॉब. यस मैम. मैं जा रहा हूँ घर. मैंने ये सीखा. अंजना, you just stole my question. मैंने क्या You सीखा? stole my question. I was going to ask that. नहीं, ठीक है. Okay. मेरे मन की बात. Thank you so much. I'll just complete this कोई नहीं one. जानता मेरे मन की बात. How rude. Thank you. Okay, so they've just managed to pipe something. Now what I'm going to do is just एक्स्ट्रा पाइपिंग बैग नहीं है ना अपने पास अभी कोई भी. Okay. Another design जो आप इसके ऊपर कर सकते हो. And a little bit of varak. And that is your travel kit ready. That's great. चलो ट्रैवल करते हैं. चलो आओ साथियों. कहाँ ट्रैवल करना है अभी जल्दी बताओ. कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी. है ना. Now what I'll do is I know many people are clicking lots of pictures. आपको पता है क्या करना? टैग करना है. ठीक है. Okay, very good. One second. I am here only. I'm not running away at all. Let me just show you. तुमको लग रहा है कि आप If you ट्रैवल just करने see वाले हो. this, the center, you have the rose insert and this is how it looks. So, this is how it is going to look. या मैं यहीं पे हाँ. हूँ. आप अकेले आके भी मेरे साथ पिक्चर्स लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बकायदा आपके केक के साथ मेरा भी फोटो होना चाहिए. यस. पता तो चले किसने सिखाया है, राइट? वाह, ऑब्वियसली एक सेल्फी लेंगे वहां से. ऑल गुड बेकर्स, ऑल गुड. मजा आया. यू डन? आई एम डन. आर यू श्योर? तो ताली कौन बजाएगा जल्दी से? अरे वाह, हमारी प्यारी सी बेकर के लिए तालियां बजाओ भाई. Cutesy. You Cutesy. should add 2-3 more adjust. अभी भाई सब पीछे खड़े हैं. बोलेंगे हाँ क्या बोला तू? सॉरी मैं जा रहा हूँ उधर. अभी भी तो शादी है तुम्हारी. I will tell you. Okay, first I would like to call you No, here. one second. अच्छा, Let me just yeah, finish this all one. over Okay. you. So yeah, that's my rose and pistachio travel cake. Okay. Now इसमें आप बहुत सारे अलग-अलग variations कर सकते हो. जैसे you can go for a pan and a गुलकंद का केक. तो आपके पास गुलकंद के स्पॉन्ज का रेसिपी तो ऑलरेडी है, राइट? तो उसके यहाँ पे then you can जैसे रोज का इंसर्ट डाला है तो I guess Mala's has a pan का syrup also. So instead of your rose syrup, you can use pan syrup and you can make a pan का ganache and गुलकंद का केक and pan. गुलकंद के साथ मोस्टली पान जाता है तो आप वो यूज कर सकते हो. गुलकंद के साथ रोज जाएगा. ओके. अगेन जैसे अगर आपके पास आई गेस दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ, अगर इनके पास इंडियन कुछ फ्लेवर होता है जैसे मिठाई.
दे हैव ठंडाई एंड रसमलाई, राइट? सो अगेन गुलकंद एक ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको रेसिपी दिया है, द गुलकंद स्पॉन्ज इज सच अ रेसिपी जो आप हर एक मिठाई, हर एक क्रशेस वगैरह के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाता ही है. सो केक फ्लेवर यू कैन कीप इट कॉमन, एंड जो आपका गनाश का रेसिपी है जहाँ पे रोज सिरप है उसकी जगह पे यू कैन ऐड द डिफरेंट सिरप्स दैट आर अवेलेबल बाय मालास एंड यू कैन मेक डिफरेंट केक. ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिखाया है तो आपको यही बनाना है. दिस इज अ रेसिपी जिसको आप अपने तरीके से डॉक्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, तोड़ मरोड़ के उसको कैसे भी यूज़ करोगे. दिस रेसिपी नेवर गोज रॉन्ग. दिस इज़ अ नो फेल रेसिपी एंड आप उसको कभी भी कैसे भी बनाओ. द ओनली ट्रिक इज़ कि इस रेसिपी को कभी हाफ मत करना. जितना प्रोपोर्शन दिया गया है उतना आपको वन टेक में बनाना ही